ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਗਰ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕੁਕੜੀ ਮੁਰਗੀ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਂਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਆਏ ਆ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਖੋਜ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਏ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੁਆ ਦਾਸ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਦਾਸ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਰਬਾਰ ਹੈ 11 ਚਰਚਿਲ ਰੋਡ ਹੈਂਡਸਵਰਥ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਾਸ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। थैंक यू वेरी मच अशोक जी, आपका जो महाराज दर्शनदास जी की सेवा के अंदर आपने थोड़ा सा मौका दिया। आज हम फिर बात करेंगे अपने हीरो की, डायरेक्टर की और एक्टर की, ऑल इन वन। वो ऑल इन वन है, हम उसके पीछे पीछे हैं। सर्व कला समर्थ हर फन मोला। हाँ जी, देखो जैसा कि अशोक जी, एक बात मैं सबसे पहले करना चाहूँगा कि ये जो हम इंटरव्यू करते हैं, जो बात करते हैं मिशन की, ये हम कोई भी लिखता नहीं है कि हमने एक पर्चा बना लिया, उस पर लिख लिया, क्या कर लिया, थोड़ी सी डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो 30, 40, 45 मिनट जितनी भी देर हम महाराज जी की बात करते हैं
वो सिर्फ उसके आज्ञानुसार, उसकी कृपा से ही बात जो होती है वही होती है, कोई मिलावट नहीं होती, कोई इसके अंदर कोई रुकावट नहीं होती। तो पिछले एपिसोड के अंदर बात की जा रही थी, बताया जा रहा था कि यूनिफॉर्म वर्दी जो महाराज जी ने चिट्टे रंग की दी, उसके अंदर कैसे कैसे जो रूल रेगुलेशन बना दिए गए, कैसे हमने डालनी है, कैसे, वो आप पिछले एपिसोड में सब सुन चुके हैं। तो इसके साथ महाराज जी ने जो आदेश दिया कि मत्थे के ऊपर तिलक लगाना वो बहुत जरूरी है, और जो संविधान बनाया उसके अंदर महाराज जी ने बड़ी खुली छूट दी कि ये हम संविधान बना लग रहे हैं, बना दिया है, इसके अंदर आप लोगों ने चलना या ना चलना ये आपकी मर्जी है, किसी को भी फोर्स नहीं किया बंदिश नहीं है, किसी की बंदिश नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि महाराज जी ने तिलक दिया। हाँ जी, ठीक है, हाँ। तिलक दिया तो मैं देखता रहता हूँ यहाँ भी जो हमारे मेन गद्दी नशी है कई, और मेन कमेटी के जो मेंबर हैं, वो जब डेरे में आते हैं, जब बड़ा फंक्शन होता है तब तिलक लगा लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, वैसे डेरे में जब आते रहते जाते रहते तिलक नहीं लगाया होता। ये आप मुझे इसके बारे में बताएं कि ये क्या क्या हम पागल हैं जो हम लगाते हैं, जहां हम दिखावा करते हैं वो नहीं करते, वो तिलक क्यों नहीं लगाते? ऐसा है अशोक जी, जहां तक मैं समझता हूं ना, अगर मैं तिलक नहीं लगाया ना, मेरे को कुछ अजीब सा महसूस होगा कि आज मैंने जैसे कई बार ये होता ना, अगर आप शरीर के ऊपर कपड़े ना डालो तो आपको क्या महसूस होता है, ओ मैं तो नंगा नंगा हूं, मेरा कुछ मैंने मेरा शरीर नहीं ढका हुआ। ठीक इसी प्रकार से जो महाराज जी ने 10वें द्वार की जो ताकत दी है वो तिलक के अंदर दी है कि 10वें द्वार की जो ताकत है वो तिलक है। और एक सत्संग के अंदर ये भी बताया गया कि तिलक, कहीं तिलक लगाते हैं सिर्फ बिंदी लगा देंगे, कहीं जो महाराज जी का आदेश है तिलक ऐसे लगा के, सूखा तिलक लगा के और ऐसे ऊपर करना। इसमें जो भी सेवक है उसकी चढ़ती कला के लिए महाराज जी ने इसका वर दिया है कि जब हम तिलक लगाए ऊपर करेंगे तो हमारी चढ़ती कला है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भी तिलक जो है इसका भी एक कारण है। हाँ जी। और जो ये 10वां द्वार यहाँ से यात्रा शुरू होती है, हाँ जी, उसमें लगाना कि आपको अपनी कुंडलिनी उसको अवेकन करना होता है। बिल्कुल। दूसरा, आप सारी फिल्में देखते होंगे कि जब वो जंग के लिए जाते हैं, जहाँ कोई अच्छे कर्म के लिए जाते हैं, शादी के लिए जाते हैं, तो तिलक लगाया जाता है। तो ये एक शुरुआत है, जैसे कहते हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, कि उसके बिना कभी कहते कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता जब आप गणपति की उपासना नहीं करते। हाँ ऐसे जी। कहते हैं ना। एक साथ में और मैं बात शामिल करना चाहूंगा, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी ने इस तिलक के लिए हमारे को ये भी बताया है कि कितनी बड़ी शहादत हुई है। उस शहादत को बरकरार रखने के लिए, वो शहादत ऐसे ना जाए, उन्होंने तिलक के पीछे एक शहादत दी है गुरुओं ने। ये उन्होंने बोला ये खून है, लाल रंग जिसको लागा तिनके वटपागा, मैला ना ही होसी ना लागे धागा, कि ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਲਸ ਰੂਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਈਵਲ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। बिल्कुल ठीक। ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਲਾਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਿਲਕ ਤੇ ਪਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਤਿਲਕ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है जी। तो सतगुरु महाराज दर्शन दास जी ने ये हमारे को बहुत बड़ी निशानी दी, और
मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने महाराज जी ने कि जो ही तिलक की हमारे को बख्शीश की है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात की गई थी, जो आज सारी दुनिया के अंदर अशांति का जो कारण बने हुआ है, वो है कि हम एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते। महाराज जी का एक बहुत बड़ा सख्त आदेश था कि हमने जो भी मिशन है, जितने भी रिलीजन है, धर्म जितने भी धर्म है, उन सब की हमने रिस्पेक्ट करनी है, आदर मान करना है। और जिस तरीके से हम अपने मिशन को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने मिशन को हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसकी रिस्पेक्ट करें, इसी तरीके से हम दूसरे मिशनों की रिस्पेक्ट करें। ये महाराज जी का जो संविधान था उसके अंदर उन्होंने ये हमारे को बताया। और सेवक इसको बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, वो किसी के मतलब रीजन की, धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। अच्छा जी, इसके बाद फिर महाराज जी ने जब दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट के साथ साथ एक मिशन में एक यहाँ पर ब्रमिंगम के अंदर एक जो वो हुई थी, बीच में रुकावट भी आ जाती है, उसके लिए खेद है। जो रैली, जो एक कन्वेंशन हुई थी, उसके अंदर महाराज जी ने एक मिशन दिया था हमारे को, लव, पीस, यूनिटी एंड सेक्रीफाइस। और जब लव की बात आती है तो उसके अंदर सबसे पहले होता है कि जो हथियार हैं वो दास धर्म के सेवक नहीं रखेंगे। किसी भी प्रकार का हथियार रखने की बहुत सख्ती से मनाही की गई थी। जब महाराज जी दिल्ली के अंदर भी थे तब भी उन्होंने ये आदेश कर दिया था कि जैसे कुछ लोग हथियार वगैरह रख लेते हैं तो उसकी बहुत सख्ती से मनाही कर रखी थी। और जैसा कि दुनियावी तौर पे और एज ए ह्यूमन बीइंग जो एक लाइफ के अंदर आता है शादी का, उसके अंदर भी महाराज जी ने स्पेशल कानून बना दिए गए थे कि जो लड़की वालों के ऊपर ये ऐसा है कि इन्होंने ना म्यूट नहीं किया, तो वैसे होता है कि आप म्यूट कर लो ताकि किसी की कॉल ना आए, डिस्टर्ब ना हो, तो ये याद भूल गए थे। तो ये ब्रिजमोहन जी जो आपको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो महाराज जी ने दास धर्म बनाया, जैसे कोई भी कंट्री है, कोई भी संस्था बनती है तो उसमें संविधान लिखा जाता है। संविधान क्या को वो कैसे चलेगा और उसके कानून क्या होंगे, उसमें क्या फंडामेंटल होंगे। तो हजूर महाराज जी ने भी दास धर्म बनाया और उसमें उन्होंने असूल दिए थे, जैसे इन्होंने बताया कि भी तिलक लगाना है, सब धर्मों की रिस्पेक्ट करना है, कोई भी इस धर्म में आने वाला, सचखंड नानक धाम में आने वाला अपने पास हथियार नहीं रखेगा, एक दूसरे को प्यार करेगा। सो अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इस मिशन में, ये प्रॉब्लम मिशन ये है जी कि हम बैठे हुए हैं, आपको बताया कि इंक्वायरी में, बर्मिंघम दरबार इंक्वायरी में, तो इंक्वायरी में आपको पता है कि फोन आते हैं लोगों के इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो इसलिए फोन भी बज रहा है, तो ये भी काम साथ साथ में हो रहा है। तो ब्रिजमोहन जी ड्यूटी पे हैं, तो ये यहाँ भी ड्यूटी करते हैं, तो वीरवार और सैटरडे। तो ये इसके साथ ही मेरे मन में आ गई, देखो जैसे कोई उधर जाता है बाबा जी के पास, कोई इधर बाबा जी के पास जाता है, तो वो कहते हैं यार ये इधर आता है, ये उधर क्यों नहीं जाता, इधर नहीं। तो ये एक शख्सियत है जो पिछले संडे में देखा उधर डडली दरबार में, वहां थे, वहां अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो यहाँ आज ड्यूटी कर रहे हैं। तो जबकि वो कहते हैं कि उनकी अपनी है और इनकी अपनी है, लेकिन जो नाम है वो दर्शन दास का है। तो ऐसे सेवकों को होना चाहिए कि आपको जहां भी मौका मिले, यहाँ भी हो, आप अपने फकर ईमान से जाओ, और जो आपको बोलते हैं कि आप यहाँ आए हो वहां नहीं जाना, वो आप भी भटके हुए हैं, आपको भी भटकाएंगे। उनकी संगत नहीं करनी।
जो आपको जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, उनकी बात सुनो। सो दास धर्म में जो महाराज जी ने सबसे ज्यादा बनाया, क्योंकि दाज देना, अपनी टोर निकालनी, जात पात, ये सारे लफड़े महाराज जी ने खत्म किए। सो ब्रिजमोहन जी, उसमें महाराज जी ने जो जात पात का कहा था, वो उसके बारे में बताओ। अच्छा जी, एक जो महाराज जी ने स्पेशल कानून और जो दास धर्म के अनुयायी है, फॉलोवर है, उनको आदेश दिया गया कि जात पात से रहित होगा ये मिशन। इसके अंदर सब एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते, और इंसानों की और जो भी प्राणी इस जमीन पर रहता है उसकी सेवा करेंगे, उसकी लुक आफ्टर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये किया गया। और उसके लिए आगे महाराज जी ने कहा कि जो भी शादी करेंगे, विवाह की जो होगा, वो भी जात पात के अंदर कोई ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि उसी जो जात शुरू से चली आ रही है। तो इस चीज का आज आप अगर नोटिस करें अशोक जी, पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम वही चीज फैली हुई है कि आज कोई भी जात पात के अंदर नहीं है, जो जहाँ जिसका दिल करता है वहां पर शादी करते हैं। ऐसा इस टाइम देखो नेचुरली ऐसा कर दिया। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम इंग्लैंड में हैं, तो इंग्लैंड में देखने में अभी देखो जितने भी बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वहां ही उनका किसी ना किसी के साथ दोस्ती हो जाती है। जी। तो दोस्त होना कोई पाप नहीं है। तो दोस्त होने का मतलब यह है कि आप एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख साझा करते हो जी। तो वहां से दोस्ती हो जाती है, और कभी कोई किसी को पूछता ही नहीं है कि आपकी जात क्या है। जात क्या है। वो उनको पसंद करते हैं, वो उनको पसंद करते हैं, तो दोस्त हो जाते हैं। जात की बात तब आती है जब वो घर बात करते हैं कि भी मैंने लड़की देख रखी, मैंने शादी करनी है। तो वो बोलते हैं वो किस जात की है, वो लड़का किस जात का है, कहाँ से है। ये हम लोगों की प्रॉब्लम है। हाँ, हम लोग ये करते हैं, बच्चे नहीं करते। यहाँ सब शादियां तकरीबन, वो ये नहीं देखता कि ये गोरा है, ये चिट्टा है, काला है, क्या है। ये हम लोग देखते हैं, हम लोगों को ये बीमारी है। जब भी किसी को मिलते हैं पहले ही नमस्कार सत श्री अकाल करके, आप कित्थों हो जी, कित्थों केड़े गांव दे हो। ये नहीं पूछते कि आप इंडियन हो, नहीं केड़े गांव के हो, किस स्टेट से हो। ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, हम सबसे पहले डिवीजन बना लेते हैं। तो हजूर महाराज जी ने कहा कि जो दास धर्म में आएगा, जो इसका मेंबर बनना चाहता है, इसमें आना चाहता है, इस परिवार में आना चाहता है, वो जात पात को नहीं मानेगा। हाँ जी, हाँ जी। उसकी जात दास होगी, दास होगी, बिल्कुल। फिर वो दाज दहेज और दान कोई किसी प्रकार का भी दान दहेज नहीं लेगा, और सिंपल शादी करेगा। 1.25 का मतलब 1.25 पैनी वो लेकिन देंगे, हाँ, हाँ, वो उसको देंगे, हाँ वो जी, हाँ उसको जी। लेंगे। ये नहीं कि मोटे चेक कटे जाएंगे या मोटे लिफाफे के अंदर जी। ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। और बहुत से सेवक ऐसे हैं जिन्होंने महाराज जी को फॉलो करते हुए ऐसी शादी की, और महाराज दर्शन दास जी ने उनको किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी। हाँ, किसी भी तरीके से। इनकी मिसाल ये बैठे हुए हैं और इधर मैं बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल, हाँ जी। और ऑटोमेटिक वो कुछ कैसे बरकत डालता है, ये महाराज जी का काम है, हमारा ये मसला नहीं है। अच्छा, इसके साथ मैं और बता देना चाहता हूँ जी कि महाराज दर्शन दास जी ने मिशन के अंदर जो फाइनली हमारे को मुख वाक दिया गया, वो था नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्दा पला। इस मुख वाक का हमारे को आदेश है कि जब भी हम किसी भी सेवक से मिलते हैं, किसी को भी मिलते हैं, हम ये मुख वाक बोलें बजाय किसी और चीज के। तो अब दरबार के अंदर यही बोला जाता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्दा पला। फिर मांस मच्छी खाने का क्या हाँ जी, आगे फिर महाराज जी ने जो लाइफ को बहुत इजी बनाने के लिए और रोग रहित रहने के लिए, जिससे कि आपका शरीर बिल्कुल निरोग रहे, किसी भी प्रकार की आपके शरीर में कोई कष्ट ना आए, दुख ना आए, तकलीफ ना आए,
उसके लिए महाराज जी ने आदेश किया और कानून बनाया कि जो महाराज दर्शनदास जी को, सचखंड नानक धाम को और दास धर्म को फॉलो करेगा, वो शराब, मांस, अंडा, बीड़ी, सिगरेट इसका बिल्कुल भी सेवन नहीं करेगा। ये सख्त आदेश थे और जिनके सेवन से आज हम देख सकते हैं कि दुनिया भर के जो रोग हैं वो शरीर के अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और इस चीज को आज सभी जो डॉक्टर लोग हैं और दूसरे लोग हैं वो सभी एग्री कर चुके हैं और मानते हैं कि जो मांस है वो किस तरीके की बीमारियां लेके आता है। महाराज जी ने बड़े सिंपल तरीके से बताया था, ये खाने के लिए हमारे दांतों को आदेश नहीं है। जो महाराज जो परमात्मा ने हमारे को दांत दिए हैं वो सिर्फ सिंपल फूड और ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ, ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਮਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛੱਡੋ। ਬਾਕੀ ਮੀਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਸ, ਮੱਛੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਈਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਸ, ਅੰਡਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੂਲ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੂਲ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਲ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। जी जी बिल्कुल। देखो आगे तक की महाराज जी ने हमारे को रास्ते नीट एंड क्लीन करके बता दिए कि सिंपल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਇਹ ਖਾਓ, ਸਾਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਤੜਕੇ ਤੋਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। बिल्कुल बहुत अच्छा। जब मसरा की दाल का भोग लगाते हैं वो सबको बांट दी जाती है और हर भंडारे के अंदर कुछ बने या ना बने, लेकिन जो मसरा की दाल का भोग है वो लगा के और पूरी संगत के अंदर बांट दिया जाता है। बस महाराज जी ने कहा प्रसादा ते मसरा की दाल, ठीक है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, 버ਗਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਭਟੂਰੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, इसके बाद महाराज जी ने जो अगला हमारे को कानून दिया और जो मिशन का अंदर जो नया कहते हैं कि जो संविधान था उसके अंदर शामिल किया,
वो था जी, काले रंग का कपड़ा कोई भी सेवादार नहीं डालेगा। अच्छा, ये तो चलो पर्सनल बात नहीं हमने करनी है, जो आधे संविधान है उसके ऊपर बात करेंगे। जो नेचुरली बात है जी कि जो महाराज जी ने चिट्टे रंग की वर्दी दी, सफेद रंग की वर्दी दी है, उसमें कितनी शांति है। जब हम चिट्टे रंग की वर्दी डालते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल शांत हो गए हैं। जब कोई भी किसी को भी हम वैसे भी हम चिट्टे रंग को देखते हैं तो वैसे भी हमारा इम्प्रेशन भी जाता है, दूसरे का भी और अपना भी, कि भी ये शांति का प्रतीक है। प्रतीक है। दूसरा, जब कहीं भी किसी मुल्क में जंग होती है, जी। वॉर होती है, तो जब आप एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हो, तो जब आपने सरेंडर कर दिया तो आप चिट्टे कपड़े को सोटी के ऊपर लगा के खड़ा कर दो, तो वो आपको अटैक करने से बंद कर देते हैं। इसका मतलब कि शांति, शांति, पीस, बिल्कुल। मैंने सरेंडर कर दिया है। जी बिल्कुल। सो महाराज जी ने कहा, ये जो चिट्टा आपको हमने वर्दी दी है, ये एक शांति है और आपका सरेंडर है प्रभु के प्रति। जी। आपने जो माड़े कर्म, माड़ियां करतूते आप करते हो, उसका सरेंडर है प्रभु के आगे। ठीक है। बिल्कुल। और तीसरा, ये हमने जिंदे जी आपको कफन दिया है। जब कोई मर जाता है उसको ब्लैक नहीं पहनते, चिट्टा पहनाते हैं। हाँ, चाहे किसी भी धर्म के अंदर जाओ, किसी भी मिशन में जाओ, चिट्टा देते चिट्टा हैं। रंग होता है। सो ये हमने जिंदे जी आपको कफन दिया है। क्यों? कि लोग इससे भागते हैं, और जिसको हमने जिंदा जी पकड़ा दिया, जैसे कहते हैं रावण ने मौत अपने पावे ना बनी हुई सी, ते इस करके उन्हें कोई डर ही नहीं सीगा कि मौत ते मेरे कोल है जी। ते इसलिए महाराज जी कहते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਨਾਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ परमात्मा तो। ओ वाहिगुरु। हाँ जी, कितना। और सबसे पहले जो मिशन का निशान साहब था जी, वो भी चिट्टे रंग का था, और उसके बाद फिर महाराज जी ने उसको अप टू डेट किया कि महाराज जी ने 4 रंग का निशान साहब बनाया जी। जो ये कह रहे ने दास धर्म ਦਾ जो मेन निशान, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੈਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਪਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ 4 ਰੰਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਰਾ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੈਫਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ 4 ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 4 ਰੰਗਾ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ शुरुआत की थी। और निशान साहब के अंदर जी फिर उन्होंने अपना लोगो दिया। लोगो के अंदर शमशीर है, शमशीर के ऊपर माला है, और उस चीज को एलिफेंट ने ऐसे होल्ड किया हुआ है, और साथ में शेर का भी बीच में निशान है, उसको भी निशान अपना शमशीर को और माला को ऐसे होल्ड किया है। तो ये जो माला और शमशीर है, शक्ति और भक्ति है जी। जो भक्ति की जो माला है और शक्ति की शमशीर है, जो हाथी का इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अंदर मस्ती होती है, और जब आदमी इस चीज को लेके चलता है तो उसके अंदर मस्ती आती है, और ये स्लो मोशन इजी आराम से चलने वाला एक मिशन का उन्होंने हमारे को ये निशान दिया है। और जो शक्ति के साथ साथ जो शेर की जैसी है वैसी भी इसके अंदर पावर है, खाली स्लो मोशन के साथ ही नहीं है।
तो महाराज जी ने साथ में ये भी हमें प्रेडिक्शन दी थी कि भी आने वाले युग में जो है 75% जो लोग हैं जी इस धर्म के झंडे के नीचे, बैनर के नीचे आएंगे। जी जैसे बोलते हैं कि सतयुग आ गया, कल युग चले गया। सो ये है कि 350 साल जब हाँ जी महाराज जी ने कहा था कि हम्म, तब से 350 साल बाद हम्म, हजूर कहते हैं हम फिर आएंगे, जी और जो हमारा स्टाफ है, जो जी आप लोग क्लोज हो, जी और वो फिर साथ में आएंगे। हाँ हम जी खुद उनको पहचानेंगे, और तब जो लोगों की हाइट होगी हम्म, 2.5 फुट की होगी। ओहो ठीक है। बहुत और सही ये बात। हिंद बंगाल में हजूर महाराज जी कहते हैं आएंगे, जी और ये दास धर्म जी उस टाइम सबसे प्रमुख धर्म होगा। धर्म होगा। हाँ जी, ये महाराज जी के जो इन फ्यूचर है उसके अंदर ये हमारा महाराज जी ने आदेश करे हैं और ऐसे हमारे को बताया है। सो आज जी, आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफी, इतने क्योंकि काफी। बहुत कुछ इसमें ब्रिजमोहन जी ने आपको बताया है। क्योंकि इसको समझना, अंडरस्टैंड करना, उसके लिए भी टाइम है। ज्यादा लंबा हो जाए तो फिर समझ नहीं लगती। समझ तो फॉरवर्ड कर करके देखते हैं। हम्म तो ये है कि अगर आपको इस मिशन के प्रति श्रद्धा प्यार है तो जानना जरूरी है। महाराज जी ने कहा था कि मुझे हजूम नहीं इकट्ठा करना, लाखों इकट्ठे नहीं करने, मुझे मेरे प्यारे चाहिए, मुझे मेरे दुलारे चाहिए, मेरी माला के मनके चाहिए। जी वो चाहिए प्यार करने वाले, वो चाहिए जो इस मिशन को अपनाने वाले, मुझे वो चाहिए। वो चाहिए जो सेवा धर्म करने वाले, वो चाहिए जो गिरते हुए को उठाने वाले, मुझे वो चाहिए। मुझे वो चाहिए जो अपना आप त्याग के दूसरों को ऊपर उठाने वाले चाहिए, जो अपनी कहते हैं कि कमाई दूसरों के ऊपर लौटाने वाले चाहिए। वो चाहिए जो दूसरे की आफत मुसीबत अपने ऊपर ले ले। वो चाहिए जो दूसरे का दर्द जी अपने ऊपर ले ले। मुझे वो दास चाहिए जो किसी को नहीं जानता उसकी जाके मदद करे, जिसका उसके साथ कोई नाता रिश्ता कोई नहीं है। कोई मुझे नाता वो नहीं। दास चाहिए, मुझे वो दास चाहिए, कन्हैया लाल जैसे चाहिए, जो दुश्मन को भी मलहम लगाए, दुश्मन को भी पानी पिलाए, जी अपने बिल्कुल। को भी पानी पिलाए। मुझे वो दास चाहिए। मुझे वो दास नहीं चाहिए जो अपने दास को नफरत करे। मुझे वो दास नहीं चाहिए जो दासों में बाउंड्री पैदा करे। मुझे दो दास नहीं चाहिए। सो ये है हाँ दास जी धर्म। बिल्कुल। सो दास धर्म बहुत सीधा, सरल ते आसान है। आप और हम सब मिलके जी जी क्या इसकी शान बने। हमें प्राउड होना चाहिए, फक्र होना चाहिए जी जी कि हम बिल्कुल। दास धर्म के अनुयायी हैं। हाँ, इससे हमारा जीवन भी सुखी रहेगा। और जब हम परमात्मा के घर जाएंगे वहां पर महाराज दर्शन दास जी बड़े प्यार के कहते होते थे, ये आगे हैं, अब की बार इनको माफ कर दे। कमाल है, यस, इतनी बड़ी पावर जो उन्होंने आगे का भी हमारे को बता दिया कि आगे भी मैं तेरे को माफ करवा दूंगा। है बिल्कुल जी। ठीक है जी। ये तो ब्रिजमू ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। महाराज जी ने सत्संग में कहा है कि मैं फिर वहां जब आओगे तो मैं बोलूंगा, हे मेरे खुदा, हे मेरे परमात्मा, अरे इनको माफ कर दे, इन लोगों को पता नहीं है कि हाँ इन लोगों ने क्या किया है, इनको माफ कर दे और अपनी शरण दे दे। ये है तो हमारे दर्शन दास। तो अशोक जी, बड़ा मान होता है कि महाराज दर्शन दास जी ने हमारे को जग्गी भी मिशन दिया और रब्बी भी मिशन दिया। तो इस लड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि महाराज दर्शन दास जी जब 84 के अंदर इंग्लैंड में आ गए, तब इन्होंने मिशन को किस तरीके से दिल्ली में, इंडिया में और यहाँ पर गाइड किया, किस तरीके से इन्होंने आगे मिशन को बढ़ाया और सेवकों को रास्ता दिखाया। तो इसके साथ जी, नानक नाम नाम चढ़दी चढ़दी कला, कला तेरे तेरे पाने पाने सरबत दा सरबत दा भला। भला, गलती माफ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਆਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 11 ਚਰਚਿਲ ਰੋਡ, ਹੈਮਸਟਰਡ, ਹੈਂਡਸਵਰਥ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ
जो धाम है, ये जो डेरा है, ये जो दरबार है, ये यूरोप दा मक्का बनेगा, यूरोप दा सेंटर बनेगा। ते अज असी इस स्थान तो आप जी दे नाल ये गलबात कीती है, लाइव कीता। थैंक यू। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। धन दर्शन।